Hello students, welcome to day 3 of valuation of goodwill, chapter number 3. Today we'll start with example 1. Now you can pause the video and write down the question. It is calculate goodwill of the firm at 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years. 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15. Yesterday, whatever questions we did, students, that were all very easy to find out. Now today I am taking an example of adjustment where adjustments are given. ठीक है, so 2017-18 में gross profit was 40,000 and you are given that it includes loss by fire 2,000. And 2016-17 profit is given 20,000 and it includes interest received rupees 3,000. Now 2015-16 rupees 6,000 is the loss. It is the loss rupees 6,000 and it includes dividend paid 5,000. Then 2014-15 rupees 22,000 is the profit. It includes loss by theft rupees 1,000. ठीक है. Now here if you see includes loss by fire is abnormal loss. ठीक है. Then loss by theft is again abnormal loss. It includes dividend paid. This is also an abnormal loss only. एक्सपेंडिचर है जो हम नॉर्मली नहीं होता, तो नॉर्मल प्रॉफिट में ये ऐड हो, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको ऐड ऑन करेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे. देन इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम गेन, इनकम है तो एबनॉर्मल गेन है ये. ठीक है, दिस इज ऑल्सो abnormal gain. These two are abnormal losses. Other information में again some adjustments are given here. Opening stock of 2015-16 is undervalued by rupees 3,000. Undervalued by rupees 3,000. अब जो कल मैंने normal profit निकालने का एक हमने formula सीखा था, ठीक है, वो निकाल करके सामने बैठो, then only we'll be able to do the question. Opening stock of 2015-16 is undervalued by rupees 3,000. Closing stock of 2015-16 is undervalued by rupees 4,000. A machine is purchased on 1st July 2015 for rupees 50,000, but it is treated as revenue expenditure. Depreciation on machinery is 10% per annum and method SLM method लगा है यहाँ पे. ठीक है, so machine is purchased on 1st July 2015 of rupees 50,000. ये capital nature का expenditure था which we treated it as a revenue expenditure. So depreciation on machinery is 10% per annum SLM method. Now for the solution. For the solution, what you have to do, you have to make a table 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017 and 18. ये टेबल को हम वर्टिकली भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, first of all, the gross profit. Gross profit 4 years का कितना आया था? 2014-15 का it was 22,000. Then 2015-16 का it was loss 6,000. Then 2016-17 it was 20,000. Then 2017-18 40,000. ठीक है. Now 2014-15 में he is saying that it includes loss by theft
rupees abnormal loss, rupees 1000, that is abnormal loss. ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने किया था. एबनॉर्मल लॉसेस सारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, एबनॉर्मल गेन्स यहाँ पे लेस हो रहे हैं. ठीक है. सो 2014-15 में ही सेइंग इट इंक्लूड्स लॉस बाय थेफ्ट. सो एबनॉर्मल लॉस, एग्जाम्पल लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड होगा. ठीक है. सो एबनॉर्मल लॉस 2014-15 में 1000 आ जाएगा. Then 2015-16 he is saying कि it includes dividend paid rupees 5000. Dividend paid. Now dividend paid is come under the head of this non-recurring expenses. Such expenses are not expected in future. जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, इसमें डिविडेंड पेड आएगा. तो डिविडेंड पेड एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो यहाँ पे ऐड होंगे. ठीक है. सो डिविडेंड पेड अगेन 2015-16 में ऐड होगा. ठीक है. देन 2016-17 में एबनॉर्मल गेन हुआ है क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसीव हुआ. एबनॉर्मल गेन्स हमारे रिड्यूस होते हैं. एबनॉर्मल गेन्स लेस हो रहा है. एबनॉर्मल गेन्स में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव, नॉन रेकरिंग इनकम. सच इनकम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. नॉन रेकरिंग इनकम, कोई भी इनकम हो रही है, एबनॉर्मल गेन है. ठीक है. एबनॉर्मल गेन हमारा रिड्यूस होगा, दैट मीन्स 3000 रिड्यूस होगा. ठीक है. देन 2017-18 ही सेइंग कि इट इंक्लूड्स लॉस बाय फायर ऑन लॉस बाय फायर रुपीज 2000. लॉस बाय फायर यानी अगेन एबनॉर्मल लॉस है, तो 2000 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. देन opening stock of 2015-16 is undervalued by rupees 3000. opening stock undervalued है, opening stock undervalued है by 3000. ठीक है. opening stock undervalued है 3000 से, यानी कि 2015-16 का opening stock undervalued. where it is, yes, undervaluation of opening stock. undervaluation of opening stock less हो रहा है, तो undervaluation of opening stock less करेंगे हम. ठीक है. undervaluation of opening stock. अंडरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कौन से ईयर में था? 2015-16 में था, तो 3000 लेस होगा. अब अंडरवैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का अंडरवैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक कहीं ऊपर से तो आया नहीं. ओपनिंग स्टॉक जो अंडरवैल्यूएशन है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तभी तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है ना. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी यानी अंडरवैल्यूएशन हुआ होगा. जब इस साल का 2015-16 का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, दैट मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूएशन रहा होगा. तो इस एक एंट्री में दो एंट्रीज छुपी हुई हैं. इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है. जब भी अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आगे आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो पीछे वाले साल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी. तो अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक लेस हुआ, यानी कि प्लस होगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक साल पहले का, यानी यहाँ पर 3000 प्लस होगा. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री ही इज सेइंग अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014-15. क्लोजिंग स्टॉक 2014-15 का हमने अंडर वैल्यू किया बाय 4000. सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक यानी कि प्लस होगा 4000, जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हुआ 2014-15 का, यानी कि ओपनिंग स्टॉक गया 2015-16 में, सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, यहाँ भी लेस किया था, यहाँ भी लेस करेंगे 4000, ठीक है। देन he is saying a machine is purchased on 1st July 2015 for 50,000 but it is treated as revenue expenditure. हमने मशीन खरीदी थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, but we treated it as a revenue expenditure. Now again if we look at the formula, यहाँ पे given है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने चार्ज किया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। सो हियर परचेज ऑफ मशीनरी विल बी एडेड। कौन से ईयर में खरीदी थी हमने, 2015, तो यानी 2015-16 50,000. Then after that he is saying कि it is depreciation of machinery is 10% per annum SLM method. So depreciation क्या है हमारा, depreciation है any future expense like insurance premium, कोई भी future expense जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या डेप्रिसिएशन वो लेस होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम लेस करेंगे। अब SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन को आप लेस करोगे 50,000 पर 10% हमने निकाला 5,000 आया, बट हमने मशीनरी कब खरीदी, जुलाई 2015 यानी कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 50,000 का 10% एंड फॉर 9 मंथ्स, जुलाई 2015 में निकाल मशीनरी परचेज हुई थी, तो फॉर 9 मंथ्स यू विल फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। ओके, सो $3750, so less depreciation SLM मेथड लगेगा 3750 लेस फॉर नेक्स्ट मंथ, तो कंप्लीट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा, SLM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये हमें पता ही है। सो 5,000, ठीक है। Now if we try to find out the total here, 30,000 38,250, here it is 12,000, here the total will come out to us 37,000, ठीक है। दिस विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकला। तो आंसर निकल आया नो। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। तो अभी हमारा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकला, अब इस नॉर्मल प्रॉफिट से हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अब आ जाओ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ 30,000 प्लस 38,250 प्लस 12,000 प्लस 37,000 अपॉन 4। जो नॉर्मल बचपन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए करते आ रहे हो वही करना है। तो यू विल गेट 29,312.5।
आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है. इन द स्टार्टिंग इट वाज गिवन 3 years परचेज. सो 29312.5 into 3 we will get 87,937.5. दिस इज योर कंप्लीट आंसर. ठीक है. सो गुडविल यहाँ पे हमारी निकल गई. सिमिलरली you can try this illustration 4 also and illustration 5. ठीक है. illustration 4 and illustration 5 you can try out on your own. I'll be uploading both the illustrations for you. Right. Hope the session was clear. This question was clear. आगे आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वाले होंगे. सो एडजस्टमेंट्स इसी तरह से करनी है हमें. अभी फिलहाल tried only 2 illustrations, then we do the other questions also. Okay, so goodbye.